this one, we are going to read essay 580. This is our day 3 for the auditing and assurance for the CA final audit. So we are covering the concept relating to essay 580, that is the written representation. तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है. ऐसे 580 डील करता है with the written representation. It deals with the auditor responsibility to obtain the written representation from management. ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्टेन करने की डब्ल्यू और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को ऑब्टेन करने की फ्रॉम मैनेजमेंट से एंड वेयर एप्रोप्रिएट दोस चार्ज विद गवर्नेंस से. Although written representation provide necessary audit evidence, although it means to say written representation जो है वो necessary audit evidence provide करता है, they do not provide sufficient appropriate audit evidence. ये necessary audit evidence तो provide करता है but the same do not provide, ये sufficient appropriate audit evidence provide नहीं करता है. मतलब ये it is to be treated as कि ये necessary audit evidence provide करता है but ये sufficient appropriate audit evidence provide नहीं करता है on their own about any of the matters which they deal. Furthermore, the fact that management has provided reliable written representation does not affect the nature or extent of other audit evidence that the auditor obtains about the fulfillment of management responsibility or about a specific accession. Furthermore, the fact that management has provided कि मैनेजमेंट ने रिलायबल रिटन रिप्रेजेंटेशन दी है, इट डज नॉट अफेक्ट द नेचर. तो ये हमारे जो नेचर जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नेचर और एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस उसको अफेक्ट नहीं करेगा दैट द ऑडिटर ने ऑब्टेन कर दिया है अबाउट द फुलफिलमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कर लिया है और अबाउट द स्पेसिफिक असेशन. तो इसको हम फिर से एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं. व्हाट डज दिस फ्रेज मीन टू अस? SA 580, that is the written representation. The first thing which is clear in our mind, that is SA 580 written representation के साथ डील करता है. SA 580 written representation ये बोलता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑब्टेन करना रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट के. हमें ऑब्टेन करना है रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से एंड वेयर एप्रोप्रिएट हो, जहां एप्रोप्रिएट हो, दोज चार्ज विद गवर्नेंस से. Although written representation जो है वो प्रोवाइड करता है necessary audit evidence को प्रोवाइड करता है, they do not provide. ये necessary audit evidence तो है but simultaneously they do not provide sufficient appropriate audit evidence, नहीं प्रोवाइड करता है on their own about any of the matter which they deal. Furthermore, the fact that management has provided reliable, management provide करता है reliable written representation does not affect, reliable written representation affect नहीं करेगी nature को, extent को of other audit evidence that the auditor obtains about the fulfillment of management responsibilities or about a specific accession. उसके बाद further that we need to deal, that is the what is SA 580 written representation. SA 580 written representation में we need to read about the scope of the essay. What will be the scope, क्या होगा essays का, what will be the objective of the auditor, objective क्या होगा auditor का, written representation as audit evidence, date and periods covered by written representation, कौन से ऐसे dates और periods which are covered by written representation, and what are the important points to be considered, and ऐसे कौन से important points है that we need to consider. This is the chart that we need to learn or retain as it is point wise, as it is for our examination point of view, because ICAI will frame the MCQ directly from this point or by. So essay 580, that is the written representation. What will be the scope of this essay? का scope क्या होगा? This essay deals with the auditor's responsibility to obtain written representation from management and where appropriate those charged with governance. ये जो essay है, this essay deals with the auditor responsibility
ये जो ऐसे है, ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये डील करता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां होती है फ्रॉम मैनेजमेंट, ऑब्टेन के क्या जिम्मेदारियां होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट से, एंड वेयर अप्रोप्रिएट दो चार्ज विद गवर्नेंस से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे ऑब्टेन करना है, उसे ऑब्टेन करना है, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे ऑब्टेन करना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेना है, उसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड जहां नेसेसरी हो, जहां वेयर एप्रोप्रिएट हो, उसे दो स्टार्स विद गवर्नेंस से भी लेना है। देन कम्स द व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऐसे 580 में जब हम डील कर रहे हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के साथ, तो जब सबसे पहले तो स्कोप बताया कि स्कोप क्या है, व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ द ऐसे, तो ऐसे का स्कोप क्या है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे ऑब्टेन करना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को मैनेजमेंट से, और वेयर एप्रोप्रिएट दो स्टार्स विद गवर्नेंस से। उसके बाद हम डील करते हैं दैट इज दी व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा डब्ल्यूआर के कंटेक्स्ट में। जब हमने स्कोप जाना तो वो हमने ऐसे 580 डब्ल्यूआर के कंटेक्स्ट में जाना। अब हम डील कर रहे हैं दैट व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ऐसे 580 के अंदर ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, उसे ऑब्टेन करना होगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से, उसे ऑब्टेन करना होगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से, दैट दे बिलीव दैट दे हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द completeness of the information provided to the auditor। वो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा, मैनेजमेंट से लेगा, डब्ल्यूआर लेगा, मैनेजमेंट से लेगा, टीसीडब्ल्यूजी से लेगा, दैट दे बिलीव दैट दे हैव फुलफिल, कि मैनेजमेंट ने और टीसीडब्ल्यूजी ने उनने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते टाइम, एंड फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। और किस लिए, जो भी और कंप्लीटनेस के लिए कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया है, प्रिपरेशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर, और जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की है टू द ऑडिटर। उसके बाद आता है टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस जो कि रेलेवेंट है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये किसका ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का कि उसे डब्ल्यूआर लेना है, मैनेजमेंट से लेना है, टीसीडब्ल्यूसी से लेना है। कि वो ये बिलीव करते हैं कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी निभाई है जब उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया था, और पूरी वो कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट, कंप्लीटनेस है फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर, जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है वो कंप्लीट है, विच इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। उसके बाद टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, वो सपोर्ट करेंगे अदर ऑडिट एविडेंस, रेलेवेंट होंगे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या जो भी स्पेसिफिक असर्शन है उससे, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मींस ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन देके। और वो कि वो सपोर्ट कर रहे हैं अदर ऑडिट एविडेंस को, वो सपोर्ट कर रहे हैं अदर ऑडिट एविडेंस को जो भी रेलेवेंट है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, स्पेसिफिक असर्शंस के लिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट by means of written representation to respond appropriately to written representation provided by management और TCWG। उन्होंने रिस्पॉन्ड, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्जेक्टिव उसमें आता है कि दे हैव रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, रिस्पॉन्ड किया है डब्ल्यूआर को जो भी प्रोवाइड किया है मैनेजमेंट ने और टीसीडब्ल्यूजी ने, दे टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, उसे रिस्पॉन्ड करना, ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का कि रिस्पॉन्ड करना है उसे एप्रोप्रिएटली जो भी डब्ल्यूआर दिया है मैनेजमेंट ने, टीसीडब्ल्यूजी ने जो भी प्रोवाइड किया है। तो व्हाट आर बेसिकली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर विद रिगार्ड टू ऐसे 580 दैट इज रिटन रिप्रेजेंटेशन में, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, उसे ऑब्टेन करना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से, उसे ऑब्टेन करना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से। दे बिलीव दैट दे हैव फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुलफिल की है, दे बिलीव दैट दे हैव फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। वो सपोर्ट करे अदर ऑडिट एविडेंस को जो भी रेलेवेंट है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो भी स्पेसिफिक असेशन है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मींस ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन। दे रिस्पॉन्ड किए हैं एप्रोप्रिएटली टू रिटन रिप्रेजेंटेशन जो कि प्रोवाइडेड है बाय whom, by the management and the TCWG।
Then comes the written representation as audit evidence. Then comes in the picture that is relating to the concept, that is written representation as audit evidence. So what is basically the written representation as audit evidence? क्या बोलेंगे? Although written representation provide necessary audit evidence, हम ये तो consider करते हैं कि written representation act as a necessary audit evidence है, but they do not provide sufficient appropriate audit evidence. हमने मान लिया है कि written representation जो है वो necessary audit evidence है, but at the same time they do not provide वो necessary वो sufficient appropriate audit evidence provide नहीं करते हैं. Then comes the what will be the date and periods covered by written representation. कौन सी dates and periods जो है cover किया जाता है written representation के द्वारा. The date of written representation shall be as near as practicable to. जो date होनी चाहिए written representation की, जो डेट होनी चाहिए रिटन रिप्रेजेंटेशन की, दैट शैल बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू. जितनी नियर हो उतनी ज्यादा बढ़िया है, बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बट ऐसा बोला जाता है, मतलब जितनी ज्यादा नियर हो उतनी ज्यादा अच्छी है, बट इट शुड नॉट बी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद नहीं होने चाहिए ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Written representation shall be for all financial statement and the period referred to in the auditor's report. Written representation जो होनी चाहिए, it shall be for all the financial statement. सारी की सारी financial statements के लिए होनी चाहिए, and the period referred to in the auditor's report. और जो भी पीरियड रेफर्ड होगा टू इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो हम क्या बोलते हैं, द डेट ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन शैल बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल. इट शैल बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू, बट इट शुड नॉट बी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. इंस्टीट्यूट ऐसी लाइंस पे बहुत ज्यादा घुमाता है हमें, और हमें पता होना चाहिए कि जैसे जब WR की बातें चल रही है तो ये बोला जा रहा है कि इट शुड नॉट बी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, या जब हम सब्सिक्वेंट इवेंट पढ़ रहे थे तो वो बेसिकली किन पीरियड्स के बीच में होना चाहिए था, ऐसे 560 के अंदर. तो ऐसे हमें कुछ पॉइंट पे ये पॉइंट इजी होते हैं बट हमने पढ़े नहीं होते, इस वजह से हमें क्लिक नहीं होते हैं at the hour or exactly at the moment when we are giving our examination. तो कब होने चाहिए, it should not, नहीं होनी चाहिए, it should not after the date or but not after the date of auditor's report on the financial statement. Written representation shall be for all. written representation के लिए हम क्या बोल रहे हैं, that it shall be for all फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एंड द पीरियड रेफर टू इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. उसके बाद हम जो फर्दर चीजें डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड. ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो भी हमें कंसिडर करने होंगे. डाउट एज टू रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन. अगर कोई डाउट आते हैं एज टू रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन, इफ रिटन रिप्रेजेंटेशन आर इनकंसिस्टेंट विद अदर ऑडिट एविडेंस. अगर आपको डाउट आ रहे हैं अबाउट व्हाट, this is the important point that we also need to consider. अगर डाउट आ रहे हैं, डाउट किसको लेके आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं रिलायबिलिटी को लेके ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन. इफ रिटन रिप्रेजेंटेशन आर इनकंसिस्टेंट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट है विद अदर ऑडिट एविडेंस के साथ, ऑडिटर शैल परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर टू रिजॉल्व द मैटर. तो फिर ऑडिटर को परफॉर्म करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि वो मैटर जो है वो रिजॉल्व हो पाए. इफ द ऑडिटर कंक्लूड दैट द रिटन रिप्रेजेंटेशन आर नॉट रिलायबल, अगर ऑडिटर को ये लग रहा है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिलायबल नहीं है, द ऑडिटर शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इन अकॉर्डेंस विद SS 705. तो जो ऑडिटर है वो एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा इन अकॉर्डेंस विद SS 705 के अकॉर्डेंस में. that is modification in the जो modification वाला पार्ट आता है वो. requested written representation not provided. जो भी रिक्वेस्ट किया था रिटन रिप्रेजेंटेशन वो प्रोवाइड ही नहीं किया गया, तो ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट के साथ वो चीजें डिस्कस करेगा, रीवैल्यूएट करेगा इंटीग्रिटी मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट ये जो चीजें बता रही है क्या वो सही बता रही है या नहीं, उसकी ईमानदारी को रीवैल्यूएट करते हुए मैनेजमेंट एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, उसके अकॉर्डिंग वो एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट क्या होता है ऑन द ऑडिट रिपोर्ट एज पर SS 705 के अकॉर्डेंस में.
तो हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इज टू बी कंसिडर किया जाएगा, डाउट एज टू रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अगर डाउट आता है अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगर इनकंसिस्टेंट है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगर इनकंसिस्टेंट है ऑडिट एविडेंस को लेके, ऑडिटर हेल्प परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स को, ताकि वो मैटर्स को रिजॉल्व कर पाए। उसके बाद if the auditor conclude that the written representation are reliable ही नहीं है, अगर उसे लग रहा है, पहले तो वो देखेगा क्या वो inconsistent है अदर ऑडिट एविडेंस को लेके, अगर उसे उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट होता है तो वो अपनी ओपिनियन को फॉर्म करेगा एज पर एस 705। रिक्वेस्टेड रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं किए तो वो देखेगा, रीवैल्यूएट करेगा मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को लेके, और अगर उसे लगता है मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को देख के वो चीजें को रीवैल्यूएट करने की कोशिश करेगा, reevaluate the integrity of management, taking appropriate actions including क्या impact होगा ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर ऐसे 705 को लेके। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा हमारा ऐसे 580 है बेसिकली, उसके बाद टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है, और उसके क्वेश्चंस हमें पीछे दे रखे हैं। अर्लियर आई मेड अ स्टेटमेंट रॉन्ग, मैंने ऐसा बोला था कि ये सिनेरियोज है एंड इंस्टीट्यूट ने हमें सिनेरियो तो दे रखे, आंसर प्रोवाइड नहीं कर रखे, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। I want to clarify one thing, that is आंसर जो है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के हमें पीछे दे रखे हैं, we need to read each and every test your understanding knowledge questions as well as answer as well. So there is 1 second break, let me say. So first we try to recap each and everything which we have read in this video till now. तो हमने ऐसे 580 की बात की थी, ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी इसकी लाइनें वापस रिपीट हो रही है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो नेसेसरी ऑडिट एविडेंस तो है, बट एट द सेम टाइम वो हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करती, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद आते हैं हमारा व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज ऑडिट एविडेंस क्या है, डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में कौन से डेट्स एंड पीरियड कवर्ड है, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड, और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। तो व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का स्कोप क्या है, दिस ऐसे डील्स विद द ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी, ये जो ऐसे है वो डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को लेके, दिस ऐसे डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ऐसे 580 दैट इज द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्टेन करना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को फ्रॉम मैनेजमेंट से, और वेयर एप्रोप्रिएट दो चार्ज विद गवर्नेंस से। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, का क्या ऑब्जेक्टिव बनता है डब्ल्यूआर के रिगार्ड में, तो उसे ऑब्टेन करना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, उसे ऑब्टेन करना है, वी कैन से उसे ऑब्टेन करना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से मैनेजमेंट से, जहां एप्रोप्रिएट है टीसीडब्ल्यूजी से, दैट दे बिलीव कि वहां पे जहां पे वो ये मान रहे हो कि उन्होंने मैनेजमेंट ने टीसीडब्ल्यूजी ने टीसीडब्ल्यूजी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया है व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम, और कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑडिटर को, जो भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं ऑडिटर को, उन्होंने इन सारी चीजों को कंप्लायंस किया, उन्होंने प्रिपरेशन की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है उनके रिलेटिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और सारी चीजें कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, और जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं दे हैव फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा वो बता रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का जब वो ऑब्टेन करेगा डब्ल्यूआर मैनेजमेंट से डीसीडब्ल्यूजी से, वो सपोर्ट करते हैं अदर ऑडिट एविडेंस को जो भी रेलेवेंट होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, स्पेसिफिक असेशन से रिलेटेड इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मींस ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन, वो रिस्पॉन्ड करेंगे अप्रोप्रिएटली टू रिटन रिप्रेजेंटेशन जो भी प्रोवाइड की है बाय मैनेजमेंट से और टीसीडब्ल्यूजी से। रिटन रिप्रेजेंटेशन एज ऑडिट एविडेंस क्या है, ऑल्दो रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, दो जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है वो नेसेसरी ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करती है, दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन देयर ओन। चलो माना कि हमने कि रिटन रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करती है, बट एट द सेम टाइम्स दे डू नॉट प्रोवाइड द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, नहीं प्रोवाइड करती है, नहीं करती है। डेट एंड पीरियड क्या है,
डेट एंड पीरियड के लिए अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं कि एज प्रैक्टिकेबल एज सून एज पॉसिबल आप WR मांग लीजिए एंड ऑल सच थिंग, बट इट शुड नॉट बी द डेट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जितना जल्दी हो, जितना प्रैक्टिकेबल हो, उतना जल्दी मांग लीजिए, नियर एज प्रैक्टिकेबल। द डेट ऑफ WR शैल बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल, बट दैट द सेम शुड नॉट after the date of audit report on the financial statement. उसके बाद written representation shall be for all financial statements के लिए होना चाहिए and period refer to the in the auditor's report. Then आता है हमारा what are the important points that is need to be considered, doubt as to reliability पे doubt हो रहा है, WR की reliability तो जो WR मैनेजमेंट ने दिया है जिस पे हम रिलाय मतलब एज अ हम रिलाय सोर्स ऑफ रिलायंस मान रहे थे, बट अगर हमें उसी पे डाउट आ रहा है, इफ रिटन रिप्रेजेंटेशन आर इनकंसिस्टेंट है विद द अदर ऑडिट एविडेंस के साथ, तो ऑडिटर परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर को ताकि वो मैटर्स को रिजॉल्व कर पाए। अगर ऑडिटर कंक्लूड करे कि रिटन रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है, तो ऑडिटर शेल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन ले पाए इन SS 705। रिक्वेस्टेड रिटन रिप्रेजेंटेशन शैल नॉट प्रोवाइडेड, ऑडिटर शैल डिस्कस करे मैनेजमेंट के साथ, रीवैल्यूएट करे उसको इंटीग्रिटी की मैनेजमेंट की जो भी वो बोल रहा है, डिस्कस करे, रिक्वेस्ट करे रिटन रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे रहा है मैनेजमेंट, क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा है रिटन रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को रिवैल्यूएट करे कि इस वजह से नहीं दे रहा है, और आप अकॉर्डिंगली ऑडिटर जो है SS 705 के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें बता देगा। देन आता है हमारा द नेक्स्ट वन इज, ये आता है हमारा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस, और उसके बाद दिस इज द केस सिनेरियो क्वेश्चंस। तो दिस इज बेसिकली द MCQ। मतलब केस सिनेरियोज वाले क्वेश्चन है। देन कम्स द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, आंसर टू थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, these are the key takeaways or we can say the summary। these are answer to test your understanding knowledge question। तो हम क्या करते हैं कि जो ऐसे 580 है उसका क्वेश्चन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए चलते हैं। या तो ये हमारी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग से दे रखा है, एंड दिस इज अवर एंटायर चैप्टर। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ऐसे 580 पढ़ा है हमने रिसेंटली, तो ऐसे 580 की टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन हम रीड करते हैं, साइमल्टेनियसली उसका आंसर भी हम रीड कर लेते हैं। की टेकअवेज वी कैन रीड बट नॉट करेंटली, पहले हम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। दिस इज अवर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें इसको आगे ढूंढना पड़ेगा वापस, इसका आंसर अवेलेबल भी है या नहीं। यस, इसका आंसर है, हिंदी इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में इसका आंसर है। फॉलोइंग इज द क्वेश्चन इज, following is a written representation by RES Limited to its statutory auditor, that is the Messrs CTK and Associates, for audit of financial year 2022-23। Following जो है that the same is the written representation दी है given by RES Limited ने written representation WR दिया है उसके statutory auditor को। मतलब सपोज हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, RES लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन दी, उन्होंने हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन दी है
that is Messrs CTK and Associate for audit of financial year and on. The audit was that is RES Limited to its statutory auditor. Statutory auditor जो है, statutory auditor का जो पूरा firm है उसका नाम है Messrs CTK and Associates for the audit of financial year 22-23. The audit was completed and report date was 31st July 2023 को audit complete हो गई है and report date is this. Point out if there is any anomaly in written representation reproduced below. अगर कोई भी ऐसी ambiguity है, anomaly है या कोई कमी है तो 15th April 2023 to CTK and Associates Chartered Accountant, dear sir, this representation letter is provided in connection with your audit of financial statement of RES Limited for the year ended 31st March 2023 for the purpose of expressing an opinion as to whether the financial statement gave a true and fair view in accordance with applicable accounting standards in India. We confirm that, to the best of our knowledge and belief, have made such inquiry as we consider necessary for the purpose of appropriately informing ourselves. Financial statement हम किसको दे रहे हैं? ये हमें जो नीचे दे रखा है दैट इज वो रिटन रिप्रेजेंटेशन है जो कि आरईएस लिमिटेड ने दी है उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को. मैनेजमेंट ही देता है ना डब्ल्यूआर. ऑडिटर का क्या काम होता है? मैनेजमेंट से टीसीडब्ल्यूजी से डब्ल्यूआर लेना. तो आरईएस लिमिटेड यहाँ से हमारा एक पॉइंट ये पिक आउट होता है कि कौन किसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहा है. मैनेजमेंट देता है ऑडिटर को. मांगता कौन है? ऑडिटर मांगता है. तो मैनेजमेंट दे रहा है ऑडिटर को. तो यहाँ पे लिखा भी ऐसे ही क्योंकि किसको पॉइंट आउट इफ देयर इज एनोमली. किसको दे रहे हैं? सीटीके एंड एसोसिएट्स को दे रहे हैं, ऑडिटर को दे रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, डियर सर्स. दिस रिप्रेजेंटेशन लेटर, ये एक रिप्रेजेंटेशन लेटर है जो कि प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विथ योर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि जो आपकी ऑडिट है आरईएस लिमिटेड की फॉर द फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 2023 फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, ताकि आप एक्सप्रेस कर पाओ ओपिनियन कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गिव ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया. We confirm to the best of our knowledge and belief, having made such inquiry as we consider necessary for the purpose of appropriately informing ourselves. Financial statement. We have fulfilled our responsibility as set out in the terms of audit engagement dated 17th August 2022 for the preparation of financial statement in accordance with financial reporting standard. In particular, the financial statement give a true and fair view in accordance with applicable accounting standards in India. Significant assumption used by us in making the accounting estimate. ये मैनेजमेंट बोल रहा है कि जो भी सिग्निफिकेंट एजम्पशन उन्होंने लिए हैं जब वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को कंसिडर करें इंक्लूडिंग दोज मेजर वो फेयर वैल्यू पे किए हैं और वो रीजनेबल है. रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप जो भी है ट्रांजैक्शन वो एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड किए हैं, डिस्क्लोज किए हैं इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया ऐसे 550. जितने भी इवेंट्स है जो कि सब्सिक्वेंट है टू द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फॉर विच एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर उसे एडजस्ट किए हैं एज पर ऐसे 560 के अकॉर्डिंग. जो भी इफेक्ट्स है अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आर वो जो भी इफेक्ट्स है अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट वो इमटेरियल है बहुत इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. अ लिस्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज अटैच किए गए ऐसे 450 के अकॉर्डिंग. That is what? That is the uncorrected misstatement both individually और in aggregate in the financial statement as a whole. जो भी लिस्ट है अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट जो भी अटैच की है रिप्रेजेंटेशन लेटर ऐसे 450 के अकॉर्डिंग. इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, वी हैव प्रोवाइडेड यू विथ कि access to all information of which we are aware that is वो relevant है to the preparation of financial statement जैसे records, document और other matters. Additional information जो भी requested किए from us for the purpose of audit और जो भी unrestricted access है to person within the entity from you determine is necessary है to obtain the audit evidence. जितने भी transaction है वो record किए हैं accounting रिकॉर्ड्स में वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. हमने डिस्क्लोज किया है टू यू द रिजल्ट ऑफ अवर असेसमेंट ऑफ रिस्क कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियली मिसस्टेटेड है एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड. वी हैव डिस्क्लोज्ड टू यू जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन रिलेशन टू फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड वी आर अवेयर ऑफ एंड जो भी इफेक्ट एंटिटी एंड इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट एम्प्लॉय हु हैव सिग्निफिकेंट रोल्स इन इंटरनल कंट्रोल. मतलब बहुत ज्यादा डब्ल्यू आर दे रखा है कुल मिला के. इसका मतलब ये
जितने भी फ्रॉड्स हैं एंड ऑल वी हैव डिस्क्लोज टू यू, मतलब हम इसे आज पढ़ रहे हैं बट मे बी एग्जाम डेट से पहले एक बार हम इसको कट कर देंगे कि कुल मिला के हाँ ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, मैनेजमेंट ने ऑडिटर को दिया और उसमें ये सारी बातें बताई, प्रैक्टिकली तरीके से बताया गया है कि कैसे कैसे ये सारी चीजें होती है। We have disclosed to you all the known instance of non-compliance or suspected non-compliance with laws and regulation whose effect should be considered when preparing the financial statement. We have disclosed to you क्या आइडेंटिटी होगी एंटिटी की रिलेटेड पार्टीज से लेके और जो भी रिलेटेड रिलेशनशिप्स है, ट्रांजैक्शन है ऑफ विच वी आर अवेयर एज ए 580 चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो अब हमें टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का आंसर देना है, फिर ये अलग चीजें आ गई और अलग चीजें एमसीक्यूज वगैरह पूछा है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 5 का हम आंसर देने जा रहे हैं कि क्या सारी चीजें हमने जो भी ऊपर रेट की है उसका पर्टिकुलरली आंसर क्या बनता है एंड ऑल। तो बेसिकली इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। द डेट ऑफ द रिटन रिप्रेजेंटेशन शैल बी नियर एज प्रैक्टिकेबल टू। हम क्या बोल रहे हैं कि जो डेट होती है, जो डेट होती है रिटन रिप्रेजेंटेशन की, जो डेट होती है रिटन रिप्रेजेंटेशन की, इट शैल बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू। तो वो जितनी ज्यादा नियर हो, प्रैक्टिकेबल हो, उतनी ज्यादा नियर होनी चाहिए, बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। बट इट शुड नॉट बी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद वाली नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज द ऑडिटर इज कंसर्न विद। ऑडिटर किससे कंसर्न होता था, जो हम क्या बोलते हैं ये चीज हमने पढ़ी है अभी और उसको वापस जब हम क्वेश्चन के साथ रिलेट कर रहे हैं तो इट इज समहाउ इजी फॉर अस टू रिकैप और रिटेन एज वेल। तो जो डेट है रिटन रिप्रेजेंटेशन की, इट शैल बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू, बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद नहीं होनी चाहिए ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एज द ऑडिटर इज कंसर्न विद, ऑडिटर कंसर्न है विद जो भी इवेंट्स अकर हो रहे हैं अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट मे रिक्वायर एडजस्टमेंट्स की अगर जरूरत है to or disclosure in the financial statements, the written representation are dated as near as, again वही line लिखी, as near as practicable to but not after the date of the auditor's report on the financial statement। सेम लाइन इंस्टीट्यूट रिपीट कर रहा है, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हम भी रिपीट करेंगे एग्जामिनेशन में। In the given situation, written representation is dated 15th April। हमने बोला it should not after the date of audit report। अब हमें ये देखना होगा कि ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या है। तो इन द गिवन सिचुएशन में हम क्वेश्चन को रिलेट करके देखेंगे, जो हमने ऊपर पढ़ा वो फालतू नहीं था क्योंकि हमें कुछ पॉइंट्स तो वहीं से पिक करके लिखने हैं और उसके बेसिस पे अपनी कंक्लूजन ड्रॉ करनी है जो एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट में चार्ट में लिखा था वही लिखना है, बट इस तरीके से लिखना है। इन द गिवन सिचुएशन में रिटन रिप्रेजेंटेशन को डेट किया था 15 अप्रैल 2023 को एंड द ऑडिट रिपोर्ट इज डेटेड ऑन 31 जुलाई। तो ये सब सही है, मतलब इट शुड नॉट बी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो ये तो पहले ही है। तो देयर इज अ कंसीडरेबल लैग है इन द गिवन सिचुएशन। हम क्या बोल रहे थे, ऑडिट रिपोर्ट हम इन द गिवन सिचुएशन रिटन रिप्रेजेंटेशन इज डेटेड ऑन, डब्ल्यू जो है उसकी डेट है 15 अप्रैल 2023 और जो ऑडिट रिपोर्ट है उसकी डेट है 31 जुलाई 2023। तो कंसिडरेबल लैग है बिटवीन द डेट ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो जितना कंसिडरेबल लैग है मतलब गैप है, लैग इज गैप है, बट जितना होना चाहिए उतना है। इट कुड सिग्निफाई दैट सब्सिक्वेंट इवेंट्स, जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स है आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट्स, जिन भी जो भी इवेंट, अब सब्सिक्वेंट इवेंट को भी पॉइंट पिक आउट करके, मतलब हो सकता है एग्जाम में सारे ऐसे का एक ही क्वेश्चन आ जाए क्योंकि ऐसे 560 भी इसी का पार्ट है, ऐसे 570 का भी कुछ पॉइंट्स आ जाए, ऐसे 580 का तो आया ही है, हमें पता है 580 को कंसिडर करते हैं तो हम पढ़ रहे थे। इट कुड सिग्निफाई कि जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट है आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दैट रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट्स की जरूरत थी डिस्क्लोजर की, मे नॉट हैव बीन एडजस्टेड, एडजस्ट नहीं किए, डिस्क्लोज नहीं किए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट। ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट थे आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जिसमें एडजस्टमेंट की जरूरत थी डिस्क्लोजर की, मे नॉट हैव, ऐसा हमें उस स्टेटमेंट को पढ़ के लगा कि एडजस्टमेंट नहीं हुए हैं, डिस्क्लोज नहीं हुए द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट के द्वारा। एज ऑडिट रिपोर्ट इज डेटेड, ऑडिट रिपोर्ट की डेट जो है वो 31 जुलाई है।
तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ऑडिटर ने कंसिडर किए हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ, ऑडिटर ने कंसिडर किए हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो भी अकर हो रहे हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, हाउएवर रिटन रिप्रेजेंटेशन पर्टेन टू 15th अप्रैल, बट रिटन रिप्रेजेंटेशन तो 15th अप्रैल को मिल रही है। तो डिस्क्लोजर एडजस्टमेंट्स नहीं हुए हैं, बट एज ऑडिट रिपोर्ट इज डेटेड, बट ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट है वो 31 जुलाई है, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ऑडिटर ने कंसिडर कर लिए होंगे, ऑडिटर ने कंसिडर कर लिए, मतलब डब्ल्यू आर तो 15th अप्रैल को मिल गया, और सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होते हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट की डेट 31 जुलाई है, तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ऑडिटर ने कंसिडर कर लिए होंगे सब्सिक्वेंट इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, हाउएवर रिटन रिप्रेजेंटेशन पर्टेन, बट हम ये भी बोल रहे हैं कि रिटन रिप्रेजेंटेशन तो पर्टेन करी है 15th अप्रैल को। तो कुछ इस तरीके से हमें आंसर करना पड़ेगा। वी ऑल स्टूडेंट नीड टू आंसर दिस वे। उसके बाद अगर हम इससे पहले वाली केस स्टडीज पे जाए तो आई थिंक ऐसे 580 में तो एक ही है, बट हमें दूसरे वाले ऐसे इसकी तो पढ़नी होगी। लेट्स रीड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। तो हमने फिफ्थ वाला एक बार पढ़ा है, वन टाइम रिविजन। अब हम पढ़ रहे फोर्थ वाला टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का, फोर्थ वाला पढ़ते हैं। एंड आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा एक दिन में, मतलब एक पर्टिकुलर वीडियो में। then further things we will discuss in the next video. So I have made 3 video till now, 2 are already uploaded relating to SA 560 subsequent event, then SA 570 going concern, and this is our third video relating to the SA 580 written representation. In this video I have covered the things relating to the 580, the chart by the institute, by our DRS institute from study material itself. Then we have read one case study relating or based on SA 580 more, and some part relating to SA 560 as well. Now we are covering one more test your understanding question, that is question number 4. We will discuss each and everything in this question, and further maybe we end up till now. Then whenever I will made the day 4 video, so I will try to cover the remaining question as and we will also try to discuss the summary of the entire chapter, and we will discuss each and every question डे वाइज, और मतलब जितना पॉसिबल हो पा रहा है और जितनी अच्छे से पॉसिबल हो, ऐसा नहीं पाप काट रहे हैं और प्लेन रीडिंग कर रहे हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ में। ऑलराइट, तो इनमें इसमें अब हम फोर्थ वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज पढ़ना तो पड़ेगा ही। ऑडिट, वी कांट टेक एनी चांस फॉर ऑडिट, we can take any chance for ourselves but not in case of audit. This is our the current situation for all the November 24 aspirants. So test your understanding question number 4 क्या बात करता है? CA सूरज find, इसका मेरे पास I think CA सूरज finds कि जो की फाइनेंशियल रेशियोज है कंपनी के, लाइक करंट रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आर इन द रेड एंड हैव वो डिटेरियोरेट हो रहे हैं कंसिडरेबली एज कंपेयर टू लास्ट ईयर के कंपैरिजन। कैसे पता चला? वो गिर रहे हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। The company is also not able to pay to its creditor को टाइम पे पे नहीं कर पा रही है। The company is requesting time and again to its banker to grant, वो चाहती है additional credit facility, but bankers are not listening. Bankers सुनने ही नहीं चाह रहे हैं। There have been significant losses है company को due to the lack of responses of the company's product in the market. As a result of it, many products are sold किए जा रहे हैं at below cost पर। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है वो बेचे जा रहे हैं कॉस्ट से भी कम प्राइस पे, कॉस्ट से भी कम प्राइस पर। There have been these situations where the company is not able to pay the salaries of a staff on time.
ऐसी सिचुएशंस आ गई है कि सैलरीज, स्टाफ को भी सैलरीज ऑन टाइम नहीं पे किया जा पा रहा है। जितनी भी नेगेटिव फाइंडिंग्स है led him to conclude that जो यूज है गोइंग कंसर्न एज अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो एप्रोप्रिएट नहीं है. He bring this matter to the knowledge of CFO of the company. What is reporting duty cast upon him in such a scenario? The CFO informed him that the management in turn is ready to include in the disclosure of the inappropriateness of its use of going concern assumption of accounting. How should it impact the auditors की opinion को कैसे impact करेगा in case management itself discloses the inappropriateness of use of going concern assumption of accounting now? So we need to answer this. So this is the case study related. इतना पढ़ के तो पता चल गया है हमें कि ये ऐसे 570 पे based है. We need to discuss the things relating to ऐसे 570 और जो भी इसमें केस सिनेरियो में एग्जैक्टली जो जो पूछा है वो हमें बताना है. मतलब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन में जो पूछा है TYQ में जो भी है ये TY टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग TYU. If the financial statement have been prepared using the going concern basis of accounting, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जा रहा है यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का यूज करके, बट इन द ऑडिटर्स जजमेंट मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इनएप्रोप्रिएट, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन. if the financial statement if the financial statement have been prepared, अगर financial statement को prepare किया जा रहा है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जा रहा है यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बट इन द ऑडिटर्स जजमेंट, बट ऑडिटर के जजमेंट में मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो इनएप्रोप्रिएट है, तो ऑडिटर को एक्सप्रेस करना चाहिए एडवर्स ओपिनियन. हम क्या बोलते हैं, if the financial statement have been prepared using the going concern basis of accounting, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जा रहा है यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे उसको प्रिपेयर किया जा रहा है, बट इन द ऑडिटर्स जजमेंट, बट ऑडिटर के जजमेंट में जो मैनेजमेंट यूज है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे वो इनएप्रोप्रिएट लग रहा है, तो ऑडिटर एक्सप्रेस कर सकता है एडवर्स ओपिनियन. The requirement for an auditor to express an adverse opinion applies regardless of whether or not the financial statement include disclosure of inappropriateness of the management use of going concern basis of accounting. जो रिक्वायरमेंट है फॉर एन ऑडिटर टू एक्सप्रेस, जो रिक्वायरमेंट है जहां ऑडिटर एक्सप्रेस कर सकता है अपनी एडवर्स ओपिनियन को लेके, वो अप्लाई होता है रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट, वो अप्लाई होता है रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिस्क्लोजर है या नहीं ऑफ द इनअप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. Therefore, even if management discloses that its use of going concern assumption, कि जो यूज है ऑफ गोइंग कंसर्न assumption का ऑफ अकाउंटिंग वो inappropriate, it would have no impact on the auditor's opinion. He would need to express the adverse opinion. मतलब कि इस केस सिनेरियो में एग्जैक्टली किन बातों को डिस्कस किया गया है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया हो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बट ऑडिटर ये मानता है कि जो मैनेजमेंट यूज कर रहा है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो ऑडिटर की नजरों में इनएप्रोप्रिएट है, तो वो अपनी एडवर्स ओपिनियन दे सकता है. नंबर 1, मैनेजमेंट बोल रहा है उसने गोइंग कंसर्न अजम्पशन का यूज करके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग को किया है एंड ऑल सच, बट ऑडिटर की जजमेंट के अकॉर्डिंग उसे लग रहा है कि जो मैनेजमेंट ने यूज किया है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो somehow inappropriate है, तो वो उस केस में एडवर्स ओपिनियन दे सकता है. जो रिक्वायरमेंट है ऑडिटर का एक्सप्रेस करना एडवर्स ओपिनियन अप्लाई हो जाता है whether or not the financial statement include disclosure, अगर चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर हो या ना हो inappropriateness of management use of going concern basis of accounting, तो ऑडिटर की जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सप्रेस करने की एडवर्स ओपिनियन वो अप्लाई हो जाता है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि चाहे मैनेजमेंट ने वो चीजें डिस्क्लोज की है, इनएप्रोप्रिएटनेस यूज ऑफ मैनेज डिस्क्लोज किया है वेदर और नॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर है या नहीं ऑफ द इनएप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. Therefore, if management disclose करता है that is use of going concern assumption of accounting is inappropriate,
Therefore, अगर मैनेजमेंट ये डिस्क्लोज करता है कि जो यूज है गोइंग कंसर्न अजम्पशन का, अकाउंटिंग का, वो इनएप्रोप्रिएट है, देयरफॉर इवन इफ मैनेजमेंट डिस्क्लोजेस, अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज करता है कि जो यूज है गोइंग कंसर्न अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग वो इनएप्रोप्रिएट है, इट वुड हैव नो इम्पैक्ट ऑन ऑडिटर के ओपिनियन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ही वुड नीड टू एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन, चाहे मैनेजमेंट डिस्क्लोज करे या ना डिस्क्लोज करे। ऑडिटर के जजमेंट में कि ये इनअप्रोप्रिएट है मैनेजमेंट का यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, तो वो एक्सप्रेस कर सकता है एडवर्स ओपिनियन। इन शॉर्ट तो यही बन रहा है तीनों लाइनों से। फर्स्ट लाइन में ये बोला कि मैनेजमेंट के जजमेंट, ऑडिटर के जजमेंट में वो चीजें इनअप्रोप्रिएट है, यूज ऑफ मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न अजम्पशन, तो वो एडवर्स ओपिनियन बता सकता है। फिर बोला जाता है कि ऑडिटर एक्सप्रेस कर सकता है एडवर्स ओपिनियन, चाहे चीजें डिस्क्लोज हो चाहे चीजें डिस्क्लोज ना हो। उसके बाद चाहे मैनेजमेंट अलग से डिस्क्लोज कर दे तो भी ऑडिटर जो है एक एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है। तो बस इस वीडियो का हम यही तक एंड अप करेंगे। वी डोंट वांट टू ब्रेक अवर effectiveness as well, or we can't break the efficiency in reading the content। बहुत ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट होगी और हमारी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी रिड्यूस होगी। तो इन दिस वी हैव कंक्लूडेड 580, दैट इज रिटन रिप्रेजेंटेशन। कहीं ना कहीं जाके चीज़ें कनेक्ट होगी जब हम फर्दर रिविजन करेंगे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम रीडिंग वी आर एबल टू नो कि ऐसे 580 क्या है, कैसे केस सिनेरियोस बन सकते हैं, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, और वी आर स्टिक टू ICA मटेरियल। अदर नोट्स वी विल यूज फॉर आवर रेफरेंस, बट स्टिक मॉड्यूल को हम नहीं छोड़ सकते।